Hello. Yeah, Sachin, Hello. good afternoon. Dr. Vijender speaking from Europedia. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. With me, there are mentors Hani Verma sir and Arjun sir, and we will be going ahead with your mock interview for civil engineering. तो Okay, sir. बिफोर वी स्टार्ट सचिन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो अपना, कहाँ से हैं, कब आपने ग्रेजुएशन किया, लिटिल इंट्रोडक्शन. Yes, sir. हाँ जी. Actually, sir, I am civil engineering from JCRC College, Jaipur. Okay. Jaipur Engineering College at Center. Okay. And I'm graduating in 2018. Then I prepared for ESC and GATE. And right now I have got scored 576 in GATE. And all India rank is 4136. Okay, good. What is your BTech CGPA? BTech CGPA, it's a percentage 73.20. Okay, okay, good. So, Yes, sir. Sachin, we will prepare for MTech interviews, right? Okay, sir. Yes, ओके, sir. सो ये इंटरव्यू आपका उसी डायरेक्शन में, मॉक इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जाएगा फॉर एमटेक एडमिशंस. आप मेरे को ये Okay. बताओ सचिन के आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? Sir, geotech, structure, transportation, ओके and so on. ओके, स्ट्रेंथ ऑफ Yes. मटेरियल आल्सो फाइन. Yes. So I start with strength of material for you, and then I Okay. think other mentors can take. अच्छा, मेरे को ये बताओ धीरज कि आप ने स्ट्रेस और स्ट्रेंथ के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं मेरे को, क्या होता है Sorry, sir. First word, sir. स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ? Abstract and strength. नहीं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेंथ. अच्छा, okay. Stress and strength. या Yes, sir. Strength is the, sir, basically the means particular material have a strength. Means up to that point he can bear some particular strain in that mechanism. ओके After that it will be failed. Now, due to the when we apply a pressure or a force in the body, then strain generated in the body. But according to that strain, stress is generated. Means stress is dependent on the force which we applied. It's not a different from another thing. Means it's regarding to the internal body resistance. That will be the stress. व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ? And strength is the failure, a particular point beyond which the metal cannot bear any resistance. That will be the strength. Means we applied load up to some 20 megapascal and it will fail. Then strength of that material will be 20 megapascal only. ओके, तो स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में रिलेशन क्या हुआ फिर? Sir, strength is basically mathematical term which we can define. And stress is generated in a body, internal resistance of the body. No, I'm asking the relation between the two. Are they related? I just knowledge. अच्छा, प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस पता है आपको? प्रेशर एक्चुअली मतलब हमेशा क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ही लगता है जहाँ तक है. और स्ट्रेस में भी डायरेक्ट भी होते हैं, ड्यू टू मोमेंट से भी होता है, बेंडिंग मोमेंट, शियर स्ट्रेसेस भी जनरेट होते हैं मतलब, एंड डायरेक्ट भी होते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस भी होते हैं. ओके, सो दीज आर द स्ट्रेसेस. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे दूं, यस सर, तो उससे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के किसी पॉइंट पे आप शियर फोर्स कैसे निकालेंगे? सर उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से मीन्स शियर फोर्स वी आर टू कैलकुलेट. या यस सर. कैसे निकालना है? जैसे बेंडिंग मोमेंट दीजिए तो अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं शियर फोर्स इक्वेशंस पे आ जाऊंगा उसकी, या और मतलब बेंडिंग अच्छा, मैं आपको एक अंडर द सम ऑफ शियर फोर्स ही होता है. तो मैं आपको एक बीएमडी दे रहा हूँ सचिन. आई एम गिविंग यू अ बीएमडी. यस सर. जो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी हाइट इज 10 and length is also 10. Length is also 10. Understand? Yes sir. आप इसके सेंटर में, इस डायग्राम के सेंटर में shear फोर्स बताओ कितनी होगी, और बेंडिंग मोमेंट भी बताओ कितनी होगी. You understood the question?
Yes, sir. Yes, sir. I have given you BMD as a right angle triangle with the height and length as 10. You have to tell me what is the shear force at the center of this triangle Mm-hmm. and also bending moment at the center. Okay, sir. Shear force. Sir, actually मैं confused mathematical terms के बीच में confused हो रहा हूँ, तो accurately आंसर बता नहीं पा रहा. Okay, I think then Hani sir can proceed forward. Yes, sir. Okay, Sachin, tell Yes, me what sir. is the difference between seepage and permeability? Yes, sir. Sir, please repeat me. What do you understand by seepage and permeability? Seepage and permeability. Sir, permeability, soil passing capacity of a soil or a particular material, and seepage is beneath the ground, which have the zero or approaches to zero when the water passes through the voids of the soil. That will be the seepage. And the permeability is the water passing capacity. Okay. Yes, sir. What are the factors affecting permeability? Can you tell? Yes, sir. Size of the soil particles, void ratio, and so density of the liquid, and impurity presented in the soil, etc. Does specific gravity of the solids is also a factor affecting permeability? Yes, sir. Special gravity, yes, sir, it will affect the permeability. Lesser will be the gravity. Then the lesser will be the special gravity. Lesser will be the special gravity, and less will be the permeability. Are you sure? Yes, sir. Okay. By the example that gravel have more specific gravity, so it will have more permeability. Means it will pass the water more frequently than the fine. ग्रेवल के अंदर जो परमेबिलिटी ज्यादा होती है उसका रीजन स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है या फिर वॉइड का साइज ऑफ वॉइड? सर मीन्स बोथ जो रिलेशन है ये इंडिपेंडेंट है. अगर एक रिलेशन को देखते हैं तो दूसरे को कांस्टेंट रखना पड़ेगा अपन को. मीन्स वॉइड्स को देखते हैं अपन तो साइज को कांस्टेंट मान के अगर देखें तो वो भी डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे. मीन्स दोनों रिलेशंस आर गुड. जो permeability is a property of the soil. No, sir. Permeability is not a property of soil. Means it is something water passing capacity of by which the material will allow it to pass the water. That will only permeability. Okay. And void ratio and porosity are the property of the soil. Void ratio and porosity are the property. Yes, sir. Yes or no? Okay. Yes. What do you understand by quicksand condition? Quicksand condition when in the upward seepage flow, when the effective stress tends to zero, means liquefaction attained by the soil when the effective stress is zero in upward seepage flows. Then the quicksand condition have obtained. और किन सॉइल्स के अंदर ये देखने को मिलती है? Sir, basically in the sand. Sands में, yes sir. ग्रेवल्स के अंदर होती है? No sir, gravels में no sir, gravels में no. क्लेज में?
इतना मतलब इफेक्ट नहीं आती, मतलब जितना एनालाइज हमें सैंड कंडीशन में करना पड़ता है, ग्रेवल्स में इतना नहीं कर पाते अपन। क्ले के अंदर यस सर। क्ले के अंदर होती है क्विकसैंड कंडीशन? नो सर, क्ले में भी नहीं। ओके, हाउ दिस क्विकसैंड कंडीशन डिफरेंट फ्रॉम लिक्विफेक्शन? सर क्विकसैंड कंडीशंस इज बेसिकली मींस व्हेन जब सॉइल्स की स्ट्रेसेस, इफेक्टिव स्ट्रेसेस बिकम जीरो, व्हेन द upward seepage conditions occur, then the quicksand condition obtained. Liquefaction is a phenomena occurs due to the earthquake or something vibrations motion. Then liquefaction occurs. Since to and fro vibrating bodies, if destabilize the soil or some materials, then liquefaction will attain. और लिक्विफेक्शन किन सॉइल्स के अंदर होती है? Liquefaction बेसिकली सर इन लूज सैंड। लूज सैंड के अंदर? यस सर। डेंस सैंड के अंदर क्यों नहीं देखने को मिलती? सॉरी सर? डेंस सैंड के अंदर क्यों नहीं होती है? डेंस सैंड में सर, डेंस सैंड में एक्चुअली वी हमको उसमें क्लियर कट फेलियर ऑब्टेन हो जाता है, तो मीन्स डेंस सैंड रेजिस्टेंस इतना ऑब्टेन नहीं करती, और जबकि जो पार्टिकल लूज सैंड में होते हैं वो काफी अपने आप से उनमें वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो लूज सैंड बेसिकली उसमें देखने को मिलती है। What are the various steps involved in constructing a structure? अगर कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं? स्ट्रक्चर्स मीन्स सर फर्स्ट ऑफ ऑल surveying and then preliminary estimations and costing, then the materials, कितने materials and क्या जो भी है उसमें materials लगने वाले हैं, and analyze we structure, अगर बहुत multi storied building है then we have to analyze, and economy also consider, how economical it will impact the environment and other commercial things, and finally project is completed either in during time or it will extend that time, so means project management also it will be considered in that building a structure. एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको कौन से स्टेप करने होंगे? एज ए स्ट्रक्चर में मीन्स सबसे पहले तो सॉइल एनालिसिस, मीन्स सॉइल एनालिसिस की कितने वो कितने मीन्स कहाँ तक सॉइल कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी अकॉर्डिंग, एंड स्ट्रक्चर एनालाइज करना, मतलब कितने बार्स, कौन से बीम, कहाँ पे बार्स ज्यादा देने पड़ेंगे, कहाँ पे टेंशन जोन ज्यादा आ रहा है, कहाँ कंप्रेशन जोन ज्यादा आ रहा है, सिस्मिक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस जोन है तो वहाँ पे सिस्मिक वल्नरेबिलिटी करनी पड़ेगी। Okay, what are the factors affecting axial stiffness of the member? Axial stiffness, yes sir। तो कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं? इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है किसी भी मेंबर की एक्सियल स्टिफनेस। सर फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी एंड कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सियली, एंड हाउ मच स्ट्रेन इज इंड्यूस्ड इन दैट बॉडी, and that was ये सब फैक्टर्स एक्सियली मींस पुल, कोई जोन पे कंप्रेशन पड़ रहा है, किसी में टेंशन पड़ रहा है, अगर एक्सियली रिजिड है मेंबर्स, तो वी हैव टू हमको उसको फ्री बॉडी डायग्राम बना के एनालाइज करना पड़ेगा। फैक्टर्स होता क्या है ये एक्सियल स्टिफनेस होती क्या? सर मींस अब जैसे कोई भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो मींस उस फोर्स से बॉडी में कितने मतलब कितने आसानी से वो डिफॉर्म हो सकती है, या कितना रेजिस्टेंस कर रही है वो अपनी बॉडी को डिफॉर्म होने में, दैट विल बी द स्टिफनेस, मींस हाउ स्टिफ द बॉडी इज। एक बिल्डिंग है मेरे पास, एक 2 स्टोरी बिल्डिंग है, एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है, किसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी अगर सारे के सारे पैरामीटर सेम है?
स्टिफनेस किसकी ज्यादा होगी? एक 2 स्टोरी बिल्डिंग है, एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है, बाकी सारे फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो आप बताओ किसकी स्टिफनेस ज्यादा है? सर वैसे अगर एन 5 स्टोरी 5 स्टोरी बिल्डिंग। नो सर। चलो ठीक है सचिन, अभी आपसे अर्जुन सर पूछेंगे कुछ क्वेश्चन ना। यस सर, फॉर श्योर। Sachin, यस सर, हेलो सर। hello. Yes. Can you explain direct shear test? Direct shear test. Yes sir. Yes. What is it? Sir, we soil, हम soils को रखते हैं particular size of specimen में, box में, square shape box. Then we apply pull. So by that we then calculate the normal stress induced in that soil specimen. So and then उसके बाद we analyze the equations which we obtained from that. Tau is equals to K into N normal force N. Then we relate that. The normal force जो आपने कहा कि वो हम कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग? No sir, means हम कैलकुलेट करते हैं shear stress जो soil specimen में जनरेट हुआ है। हाँ जी। जो डायल गेज की रीडिंग्स होती हैं उससे नॉर्मल डायल गेज की रीडिंग से हम स्ट्रेसेस उसमें इंड्यूस होते हैं जो कैलकुलेट करते हैं, एंड उससे फिर जो शेयर में आ रहा है वो हम नोट करते हैं। ओके, तो इसके कितने मैकेनिज्म्स होते हैं? मैकेनिज्म डायरेक्ट शेयर टेस्ट को करने के लिए कितने, जो भी हम पुल, आपने जो बोला पुल हम अप्लाई करते हैं, उसके कितने मैकेनिज्म्स होते हैं? सॉरी सर, फॉरगेट। ओके, इसकी लिमिटेशंस पता होगी आपको? Limitation, major limitation is that failure rate is not obtained. Means predefined. Failure rate is predefined. So it's a major issue is that. Okay. क्या ये drainage? Is there any control over drainage? No sir, it has no control over drainage. Okay. Can we measure pore water pressure in this? No sir, we cannot measure. Means we have no control in drainage. So how much the pressure generated by the pore water pressure, we can't calculate it. So we can't measure that way. Okay. Yes sir. If I am conducting this test for sand samples, how many observations do I need to take? Sir, I have no idea about that. Okay. Okay. If I'm conducting a UU test on saturated clay, UU test, unconsolidated, undrained test. Yes, yes. What property? What is a unique thing in this test for saturated clay? Sir, basically this test is actually means it's a rapid test that undrained, means we can't allow the water to precipitate it, means we are allowed to drain it. It is in undrained condition, means in short period of time. You said it is a rapid test. You said it is a rapid test. Result कितनी देर में मिल जाता है? The results in about 2 to 3 hours. 2 to 3 hours. Yes, sir. आगे बोलो क्या कह रहे हो? And means इसमें only cohesive properties होती हैं and friction properties इसमें नहीं होती, absence रहती है, frictional properties. Okay. और drain condition में saturated clay, how does it behave? Drain condition में saturated clay, how does it behave? So, it's like a cohesive soil, sea soil. Means if we have to measure the pore water pressure, then we can measure by the mechanism. Mm-hmm. Means we have option. It's a drain conditions, means effective parameters can be used. So we measure the
pore water pressure, but basically it's behave like a clay soil. Saturated clay. Okay. Yes. Both इसमें कोई और कंसिडरेशन रखनी होती जब भी हम इसको टेस्ट करते हैं सैचुरेटेड क्लेस के लिए अंडर ड्रेन्ड कंडीशन? मीन्स सर क्या सर एक मिनट बेसिक उस सॉइल जहां से हम लोग ये सैंपल लेके आए हैं Yes, मुझे sir. और कोई फैक्टर अंडर कंसिडरेशन रखना होता है जब मैं ये टेस्ट कंडक्ट करूंगा? Yes, sir. Means sir, basically the major issue is that so index properties इसकी changes नहीं होनी चाहिए because index properties अगर change होगी तो इसमें ये सब कुछ अपन एनालाइज कर रहे हैं आगे का जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो सॉइल से ही बनेगा तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज कांट बी डिस्टर्ब मींस हमारी ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज या शेयर पैरामीटर? सर जब सैंपल को लेके आना है तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज शुड बी नॉट डिस्टर्ब. ठीक है. यस सर. इट बेसिकली एज अ अनडिस्टर्ब सैंपल. Okay. Yes, sir. If I plot these Mohr circles with respect to total stress और अगर effective stress के लिए भी करूं तो जो shear parameters आएंगे क्या वो सेम होंगे? No sir, shear parameters change होंगे. सेम होंगे? No sir, different अच्छा होंगे. नहीं होंगे. What मतलब shear parameters कौन से होते हैं? C and phi are the shear parameters. Okay. Means उसमें pore water present है. So we have effective shear parameters. And if bulk quantity में present है, means no water, then we use parameters. What do you mean by capillarity? Capillarity. हाँ जी. Yes sir. When thin small tube means less diameter tube inserted, then water or any liquid will rise or fall. It is a capillarity. This concept is due to? So it is basically due to surface tension. Okay. So what is the difference between capillary water and adsorbed water? Capillary and exhaust. Adsorbed. Adsorbed. Yes. The adsorbed water adsorbed thing is something a material which adsorb on the surface, means it's absorb only on the surface of the material, and capillarity is a rising or falling depend on the density or specific gravity of a liquid. Adsorb property related to the surface criteria of the material. Okay. Surface criteria. Yes, sir. But there is one more thing known as free water. Free water. Yes, sir. Free water या gravity water. Yes, sir. Yes, sir. How much is it different from these two kinds of water? जो अभी हमने capillarity या adsorbed बोला. The free water. Free water is basically a type of surface water, means we can be seen from the naked eye, and it can be pulled with the effect of gravity. That is a free water. And capillarity is not sea water. I'm talking about free water. Free water. Free. Yes, sir. FRW. So, which water according to you has more boiling point? Free water या adsorbed water? Boiling point किसका ज़्यादा होगा? Adsorbed water का सर boiling point ज़्यादा होना चाहिए. Adsorbed water का boiling point. Yes. और या freezing point? Freezing. Yes. Freezing point adsorbed water का freezing point free water का ज़्यादा होना चाहिए. And viscosity? Adsorbed water quantity में less होता है. Free water means large होता है quantity में. So
freezing point will be more for free water. Okay. Viscosity? Yes. Viscosity. Sir, internal resistance of a fluid. No. I'm talking about viscosity किसकी ज्यादा होगी? Viscosity, adsorb or free में से. हाँ जी. Sir, I have no idea. Okay. That's it from my side. क्या आप आपको Okay. फीडबैक दे दें? Yes, sir, for sure. Yeah. सबसे Yes, sir. पहला क्वेश्चन आई आस्क्ड यू अबाउट द डायरेक्ट शियर टेस्ट. Yes, sir. आपकी बेसिक थोड़े से वीक है इसमें, क्योंकि बहुत बेसिक टेस्ट है. जो सबसे पहला टेस्ट है जो हम शेयर स्ट्रेंथ और मटेरियल्स में करते हैं, Okay. है ना? Yes, तो sir. Yes, sir. यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट करेक्टली. ठीक है. Yes. बॉक्स में डालते हैं एक परसेंटेज. ओके, आइदर स्क्वायर और सर्कुलर. ठीक है. 60 से 90 mm का साइज होता है. देन देयर इज नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर वाटर प्रेशर. तभी मैंने आपसे पूछा था. हेंस तभी हम ये टेस्ट हम किस में करते हैं? ड्रेन्ड कंडीशन में करते हैं. ठीक है. ड्रेन्ड कंडीशन में वी यूज दिस टेस्ट. ठीक है. Okay. और आपने कहा था पुल करते हैं. मैंने उसके बाद आपसे पूछा कि कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं वो पुल को जनरेट करने के लिए. Yes, sir. दैट इज स्ट्रेस कंट्रोल्ड एंड स्ट्रेन कंट्रोल्ड. Okay. Stress ठीक है. control. स्ट्रेन कंट्रोल. ठीक है. स्ट्रेस मीन Yes, sir. मैंने लोड एक प्लेट या हैंगिंग कंटेनर में डाल के एकदम से झटके से दिया. ठीक है. Okay. स्ट्रेन कंट्रोल्ड इज कंट्रोल मेरे हाथ में. धीरे धीरे आई विल प्रोवाइड द स्ट्रेन. Gradually. ठीक है. तो इससे ही मुझे पता चल रहा है कि कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल होगा. स्ट्रेन कंट्रोल्ड इज मच मोर प्रेफरेबल, है ना? ठीक है. Yes, sir. तो यू आर राइट अबाउट द जो भी है. आप नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करते हो, प्रूविंग रिंग से आप रीडिंग लोगे, फिर उसके बाद आप Yes. शेयर फोर्स निकालोगे. देन आई आस्क्ड यू अबाउट लिमिटेशन. ठीक है. Limitations. Yes, sir. आपने एक लिमिटेशन दी थी कि प्री डिटरमिन्ड होता है प्लेन. देयर आर Yes, sir. मोर. इसमें क्या है? सबसे पहले पोर वाटर प्रेशर में मेजर नहीं कर सकता. ये दूसरी Yes. हो गई. ड्रेनेज कंडीशन में जो ड्रेनेज हो रही है उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. ये तीसरी हो गई. ठीक है. Yes, sir. जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आएगी फेलियर प्लेन पे, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो यूनिफॉर्म नहीं होगी. कॉर्नर्स Okay. पे ज्यादा होगी और सेंटर पे क्या होगी? कम होगी. क्या कम ठीक है? होगी? जो स्ट्रेस कंडीशन है इज ओनली नोन एट फेलियर. उससे पहले मैं स्ट्रेस कंडीशन डिफाइन नहीं कर सकता. जब फेल होगा तभी मैं वो चीज डिफाइन कर सकता हूँ. फिर मैंने आपसे पूछा था कि स्टैंड के लिए मुझे कितनी ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत है. मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत है. बिकॉज मुझे पहले से ही पता है कि जो मोवर फेलियर एनवलप है स्टैंड के केस में, इट विल पास थ्रू ओरिजिन. वो ओरिजिन से ही होगा बिकॉज इट इज कोहेजनलेस, है ना? तो मुझे एक ही रीडिंग लेने की जरूरत है. Only one. ओके. फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा था यूयू टेस्ट में व्हाट इज द यूनिक थिंग. Yes, sir. उसमें यूनिक एक चीज है, उसमें यूनिक इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल मिलता है. वो हमेशा एक ही इफेक्टिव स्ट्रेस मोर सर्कल मिलेगा एवरी टाइम. ठीक है. आप चाहे जितनी मर्जी रीडिंग्स ले लो उसमें. Okay. Unique effective stress. बिकॉज Yes, sir. जितना भी मैं लोड इंक्रीज करूंगा उतना ही इंक्रीज किस में होगा? पोर वाटर प्रेशर. सडन केसेस में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है ना? ठीक है. Yes. ग्रेजुअल में वो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगा. तभी इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल हमें दूसरे और मिलेंगे हर केस में अगर मैं ड्रेन कंडीशन में करता हूँ. ठीक है. एवरी टाइम आई विल गेट अ न्यू इफेक्टिव स्ट्रेस. ठीक है. Okay. Yes, sir. फिर मैंने आपसे पूछा था कि टाइम कितना लगता है. इट टेक्स ओनली 5 to 10 5 to 10 minutes. minutes. Yes, not hours. Okay. Okay. Saturated Then- clay under drained conditions मैंने आपसे पूछा था. Saturated clay under drained conditions मैंने आपसे पूछा था. उसमें Yes, sir. 2 तरीके के मिलते हैं. ठीक है. 2 मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं किसी साइट से लेके आ रहा हूँ सैंपल, इट कैन बी अंडर 2 कंडीशंस. या तो वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेट में होगा या तो वो ओवरली कंसोलिडेटेड, Over concentrated. है ना? Okay. जब नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेट में होगा, द
सॉइल विल बिहेव लाइक डेंस सैंड, ठीक है, तो उसका मोहर स्ट्रेस एनवलप ओरिजिन से निकलेगा, ठीक है। आप कह रहे थे Okay, इट विल okay, okay. गिव सम कोहेजन, it will give some cohesion in the case of over consolidated condition, then it will Oh, behave as silt की तरह behave करेगा, ठीक है। फिर कैपिलैरिटी के बारे में पूछा था, कैपिलैरिटी Yes, में sir. आपका सही था, इट वाज ओके। एब्जॉर्प्शन भी आपका सही था, डेफिनेशन, ठीक है। Yes, sir. फ्री वाटर इज नॉट विच इज सीन बाय नेकेड आई, नेकेड आई नहीं, उसको आप ऐसे डिफाइन करोगे जिसमें प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक होता है, ठीक है, और उसके Okay, सरफेस पे क्या okay. होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दैट इज फ्री वाटर। नॉर्मल वाटर टेबल के नीचे इट इज स्टैटिक, एंड फ्रेटिक लाइन क्या है, फ्रेटिक लाइन पे क्या होता है, ऊपर इट इज 0 और उसके नीचे Zero. हाइड्रोस्टैटिक, Atmospheric. दैट इज फ्री वाटर, ठीक है। फिर मैंने Okay. आपसे पूछा था कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, फ्री वाटर का या एब्जॉर्ब वाटर का। जब भी आपके सामने आता है बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है, तो कितना जल्द इजीली मैं किसी सिस्टम से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ या उसमें एनर्जी डाल सकता हूँ, कितना इजीली, ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। Okay. तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर विस्कोसिटी पूछा था, विस्कोसिटी एब्जॉर्ब वाटर की ज्यादा होगी और फ्री वाटर की कम होगी, ठीक है। सिमिलरली सरफेस टेंशन भी एब्जॉर्ब वाटर की ज्यादा होगी और फ्री वाटर की कम होगी। That's all from my side. Okay. Okay, Hani, I think you can give feedback. जी सर। Yes, sir. तो सचिन, एक तो आपको क्या करने की जरूरत, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, जितने भी कंसेप्ट हैं, जो भी आप फेवरेट सब्जेक्ट बोल रहे हो, तो उसको आपको अच्छे से गो थ्रू होने की जरूरत है। मतलब आपको नॉलेज है लेकिन डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, अच्छे से आपको उसको पढ़ना है, ठीक है, थॉरली। जैसे कि मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था सीपेज एंड परमेबिलिटी, तो आप समवट तो बता रहे थे कुछ, लेकिन स्पेसिफिक नहीं कर रहे थे चीजों को। परमेबिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी है सॉइल की, बाय द वर्च्यू ऑफ इट अलाउ द वाटर टू पास थ्रू इट, क्लियर। Yes, sir. वो प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। Yes. और जो सीपेज है, सीपेज इज अ प्रोसेस, ठीक है। सीपेज प्रोसेस है पानी के फ्लो का, सीपेज इज प्रोसेस एंड परमेबिलिटी इज प्रॉपर्टी, क्लियर। नेक्स्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था फिक्स्ड एंड कंडीशन एंड लिक्विड का, तो वो आपने सही बता दिया था, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपसे पूछा कि ये लूज एंड में होती है, डेंस एंड में होती है, तो आपने बोला कि लूज एंड में होती है, बट आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि डेंस एंड के अंदर ये क्यों नहीं होती। तो इसका छोटा इसको सिंपल समझते हैं कि जैसे कि डेंस एंड के अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग सिस्मिक एक्टिविटी या फिर साइक्लिंग लोडिंग की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया किसी चीज का, तो उस पर प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, बिकॉज अब पानी है जो पोर वाटर प्रेशर, उसको ज्यादा स्पेस मिल गया ना मूव करने के लिए, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए तो इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर कम लगता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इतना ज्यादा रिड्यूस नहीं होता है इनके केस, क्लियर। और वेयर एज उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि फैक्टर परमेबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं परमेबिलिटी को, तो आपने सही बताया था, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करती है, क्लियर। दैट इज द वॉइड साइज, वो जो इफेक्ट करता है। एंड फिर नेक्स्ट मैंने पूछा कि वॉइड रेशियो, वॉइड इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, इट इज अ स्टेट पैरामीटर। Void ratio and porosity are not the property of the soil, it is a straight parameter, clear। नेक्स्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रक्चर, तो उसको आपने मतलब काफी घुमा के बोला, बट एज अ सिविल इंजीनियर और स्ट्रक्चर इंजीनियर कि हमारे पास क्या आती है, ड्राइंग आती है, ड्राइंग के बाद हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज के बाद उसकी डिटेलिंग होती है जिसको हम डिजाइन बोलते हैं। डिजाइन किया, एनालाइज करने के बाद कितना लोड उसके ऊपर आया, उसके बाद हमने उसको डिजाइन किया, जो हम आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोड्स। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी एक डिजाइन, उसकी एक डिटेल ड्राइंग बनाई जो साइट के बाद जाती है, उसके बाद साइट इंजीनियर को एग्जीक्यूट करता है एज पर ड्राइंग, ठीक है। तो ये सिंपल वे में जो थे। नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था कि एक्सियल स्टिफनेस का कंसेप्ट, तो एक्सियल स्टिफनेस जैसे कि सपोज करो, स्टिफनेस पहले क्या होता है, स्टिफनेस इज द कितना हमें लोड चाहिए टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर डिफ्लेक्शन अगर निकाला जाए, एक्सियल डिफ्लेक्शन कैसी होती है, तो पीएल अपॉन में ए, ठीक है। किसी भी एक्सियल मेंबर के अंदर अगर हम लोड लगाते हैं, एक्सियल लोड लगाते हैं, तो वहां से अगर हम देखें तो क्या होती है एक्सियल डिफ्लेक्शन, दैट इज पीएल अपॉन में ए, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास अब पी अपॉन में दैट डेल्टा इज इक्वल टू स्टिफनेस, तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर गई वो स्टिफनेस हमारी, एक तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक लेंथ, ठीक है। तो
ई आई पे तो डायरेक्टली ये इसने क्या किया, डिपेंड करती है, और एल के ऊपर क्या करती है, यूनिवर्सली डिपेंड करती है। तो उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2 स्टोरी बिल्डिंग की स्टिफनेस ज्यादा होगी 5 स्टोरी की। अब लेंथ किसकी ज्यादा, लेंथ है 5 स्टोरी बिल्डिंग की, तो उसकी जो स्टिफनेस होगी वो कम होगी अगर सारे फैक्टर हम कांस्टेंट रख दिए जाए तो। क्लियर? तो ये था, मतलब ओवरऑल ठीक था, लेकिन थोड़ा सा आपको डिटेल से पढ़ने की जरूरत है इन सब चीजों को, बाकी आपको बताएंगे। ओके सचिन, आपका जो मैंने शुरू में स्टार्ट किया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेंथ एक सिंपल क्वेश्चन पूछा। दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई यू कुड नॉट आंसर। स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस व्हिच कैन बी इंड्यूस्ड टिल द बॉडी फेल्स। तो स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू को स्ट्रेंथ बोलते हैं जिस पॉइंट पे बॉडी फेल होना स्टार्ट हो जाए। फिर प्रेशर एंड स्ट्रेस में मैंने डिफरेंस पूछा, तो वो भी आप नहीं दे पाए शायद। मैंने पूछा था क्वेश्चन आपसे, प्रेशर एंड स्ट्रेस। यस सर। हाँ, तो प्रेशर जो है वो बेसिकली एक फ्लूइड्स के लिए एक रेलिवेंट टर्म है। फ्लूइड्स में प्रेशर लगता है। स्ट्रेस जो वो आपका सॉलिड बॉडीज के ऊपर भी लगता है, एंड स्ट्रेस कैन बी बिकॉज ऑफ फोर्स, लेकिन प्रेशर इंटरमोलिकुलर कोलिजन की वजह से होता है। प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल एज यू सेड एंड इट इज कंप्रेसिव इन नेचर। स्ट्रेस कैन बी टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, ये कुछ डिफरेंसेस हैं। तो मैंने आपको पूछा कि हाउ टू कैलकुलेट शियर फोर्स फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड वाइस वर्सा। तो देखो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप होता है ना, वो शियर फोर्स होती है, एंड शियर फोर्स डायग्राम का जो एरिया है वो बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, रफली। फिर मैंने आपको ट्रायंगल दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल, उसका सेंटर पे मैंने आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए बोला। तो देखो, इसकी जो स्लोप है राइट एंगल ट्रायंगल की, दैट इज 1, बिकॉज परपेंडिकुलर और बेस इज 1, तो स्लोप 1 है और वो यूनिफॉर्म है, तो इसका शियर फोर्स तो हो गया 1। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो निकलेगी वो इसकी हाइट से निकलेगी, तो सेंटर में इसकी हाइट जो होगी दैट विल बी 5। तो बेंडिंग मोमेंट तो 5 आ गया और शियर फोर्स 1 आ गया। ऐसे आप इसको निकाल सकते थे। तो मैंने कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे, सिंपल क्वेश्चन पूछे, वो भी आप आंसर नहीं कर पाए। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका एक टॉपिक है जो आपको तैयार करना पड़ेगा, राइट। बेसिक चीजें वो आपसे पूछ सकता है। एक वीडियो मैंने डाला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे, योरपीडिया एजुकेशन पे जाओगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंटरव्यू का वीडियो है, 7 घंटे का पड़ा हुआ, उसको एक बार सुन लो यार, कम से कम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक्स तुम्हारे तैयार हो जाएंगे उसमें। फाइन, गो थ्रू दिस एंड लिसन टू दैट केयरफुली, और ये ऑडियो क्लिप आपको मिल जाएगी, तो इस डायरेक्शन में आप तैयारी करो। फाइन, थैंक यू।